Okay, so starting with thermodynamics, the term. If I just break down this word into two parts, thermo means what? Heat. Thermo would be related to heat, and dynamics would relate to Movement. मूवमेंट मोशन. यहाँ पर बेसिकली चेंज की बात करेंगे, समथिंग विच इज चेंजिंग. मतलब थर्मोडायनामिक्स इज बेसिकली रिलेटेड टू द हीट चेंजेस. ठीक है, तो दिस इज वन एस्पेक्ट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन थर्मोडायनामिक्स. बट बिफोर वी स्टार्ट दिस इन डिटेल, लेट्स start with the simple understanding of energy. How do you define energy in the simplest manner? Ability to do work. Ability to do work or capacity to do work. Matlab, let's consider this example. So this man is trying to push an object which is movable. अगर ये object movable है, तो depending on the amount of the force which is exerted on this particular object, the work will be done in terms of displacing this object. ठीक है, but अगर ये जो object है, अगर ये wall consider करें, so what will be the work done in this case? Zero. Zero. जीरो, क्योंकि ये इमूवेबल वॉल है ना. ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उसमें वी कैन डिफाइन वर्क एज द कैपेसिटी विच इज लाइक द फोर्स विच इज exerted on that particular object. So energy is simply defined as the capacity to do work. And we know that there are different forms of energy, and all the forms of energies are interconvertible as per law of conservation of energy, which states that energy can neither be created nor be destroyed. It can be just converted from one form to another. Okay. For example, if we consider the example of dam. Okay. So we know that the water which is still in the dam, it is having some stored energy in the form of potential energy. If that water is allowed to fall down, the potential energy will get converted to kinetic energy. That falling water, if it is used to drive the turbines, then it will be converted into rotational energy. And that rotational energy can produce electrical energy. That's what is hydroelectricity. That's how it is generated. ठीक है, तो यहाँ पर एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू वी हैव अंडरस्टूड दैट energies are interconvertible and it is following the law of conservation. ठीक है, अब यहाँ पर द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ मोस्ट ऑफ द एनर्जीज इज हीट एनर्जी. इसलिए व्हेन वी टॉक अबाउट द हीट चेंजेस taking place in a particular process, a physical or a chemical or any other process, then those heat changes, when we are studying in detail and applying the laws on them, that particular part or branch is called chemical thermodynamics. So in simple language, thermodynamics is the study of energy and the interconversions between them. It's the study of energy and the interconversions between them. Let's come to the applications. So here you can see there are various applications where the interconversions are related. जैसे power plant में the thermal energy converts to the electrical energy. Aircraft, spacecraft, cars में the chemical energy from the burning of fuel is converted into electrical energy. Human body में भी thermodynamics होता है, because our body would release heat in the form of sweat and allow it to cool. ठीक है, तो वहां पर भी हीट एक्सचेंज हो रहा है या हीट चेंजेस हो रहा है. सिमिलरली रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर का जो कूलिंग सिस्टम है, दैट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स. लाइक वेज विंड टर्माइंस है, बोट्स है, सोलर वाटर सिस्टम्स है, दे आर ऑल based on the concept and the laws of thermodynamics. So now to understand these applications, we need to understand some basic terms. So let's start with the definition first. So thermodynamics is the branch of science
which deals with different forms of energy and the quantitative relationship between them. And this quantitative relationship we can get by understanding the interconversions. So it's that branch which deals with the different forms of energy and the quantitative relationship between them and the energy changes that occur in the physical and chemical processes. And it is based on three fundamental laws of thermodynamics, which are known as first law, second law, and third law. Apart from these, there is also zeroth law, जो एक्चुअली फर्स्ट लॉ के बाद डिराइव किया गया था. तो क्योंकि ये तीन लॉज डिराइव होने के बाद इसको डिराइव किया, इसलिए इसको zeroth law बोल दिया. एंड इट वाज अ वेरी बेसिक लॉ which I will discuss in the later part. But chemistry के लिए, when we talk about chemical reactions and the thermodynamics associated with that, we will be dealing with the three fundamental laws of thermodynamics. And they are so powerful, they are so accurate कि आज तक कोई भी error नहीं आया है with regards to application of the laws of thermodynamics. They were discovered in the 18th century and till date there are no errors. It is 100% accurate. So now, chemistry point of view, what is the application or the importance of thermodynamics? It provides information regarding the feasibility of a chemical reaction, meaning it tells whether a particular reaction is possible or not under the given set of conditions. मतलब अगर मैं कोई रिएक्शन कर रहा हूं, ठीक है, तो लेट्स से मेरे पास दो रिएक्टेंट्स हैं और मैंने बोला रिएक्ट कर, तो रिएक्शन हो जाएगा और ये कुछ प्रोडक्ट बनाएगा. ऐसा होगा ना? हाँ जय, हो जाएगा ऐसे. कोई भी दो सब्सटेंसेस रैंडमली उठा लो और आप बोलो कि रिएक्ट कर और रिएक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा. ठीक है. सो वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड वेदर दैट रिएक्शन इज फीजिबल और नॉट, पॉसिबल है कि नहीं. नहीं तो बिना फिजिबिलिटी जाने अगर मान लो एक पावर प्लांट आपने डाल दिया और उसमें यू आर एक्सपेक्टिंग दैट ए एंड बी मिलाने से सी मिलेगा और उस सी के थ्रू यू आर गोइंग टू अर्न मनी, ठीक है, तो पूरा पावर प्लांट सब सेटअप कर दिया और बाद में ये रिएक्शन काम ही नहीं किया, तो उसको बंद करके आप सोचोगे हाँ चलो ना ठीक है, ये नहीं काम किया कुछ और, ये नहीं किया तो कुछ और. ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता है. तो सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड वेदर अ पर्टिकुलर रिएक्शन फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ any substance is feasible or not. So wo feasibility is explained by thermodynamics. In fact, अगर कोई chemical reaction आप कर रहे हो related to any manufacturing or any conversion, then उसके तीन aspects बहुत ज्यादा important है. सबसे पहले तो आप चेक करोगे the feasibility, क्या वो reaction feasible है कि नहीं. Secondly, you will understand the extent of the reaction, and extent of the reaction is understood by the branch of equilibrium. हम केमिकल इक्विलिब्रियम कर चुके हैं, वहां पर Q और K के रिलेशन के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि ये रिएक्शन कितने एक्सटेंट तक फॉरवर्ड में जाएगा या बैकवर्ड में जाएगा. ठीक है. एंड तीसरा विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन, हाउ फास्ट और स्लो द कन्वर्जन इज. बिकॉज अगर कोई रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो हो रहा है तो ऑब्वियसली इकोनॉमिकली वो उतना वायबल नहीं होगा. ठीक है. तो अगर कोई इंडस्ट्री में कोई रिएक्शन के थ्रू कुछ मैन्युफैक्चर करना है तो दैट रिएक्शन हैज टू बी वेरी फास्ट, देन ओनली द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी विल बी प्रॉपर. ठीक है. तो फिजिबिलिटी इज एक्सप्लेन्ड बाय द ब्रांच ऑफ थर्मोडायनामिक्स. Extent of the reaction is explained by chemical equilibrium, and the rate of reaction will be explained by chemical kinetics, जो और एक चैप्टर है जहां पर हम काइनेटिक्स को और डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो फॉर एनी रिएक्शन थ्री ऑफ द एस्पेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. feasibility is explained by thermodynamics, extent is explained by equilibrium, and the rate is understood by kinetics. ठीक है. So thermodynamics can also tell the direction in which the reaction tends to occur. In fact, this thermodynamics and equilibrium
were correlated, and we have studied them under the topic of thermodynamics of equilibrium. Can you tell me the mathematical relation between the thermo and equilibrium? Delta G is equal to delta G naught plus RT ln Q. परफेक्ट. एंड जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है तो डेल्टा जी 0 हो जाता है और क्यू के हो जाता है. तो फाइनली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिलेट किया था एज डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन ऑफ के इक्विलिब्रियम विच कैन बी के सी और के पी, राइट? Yes, sir. And we had also related thermodynamics with kinetics, जिसको kinetics of equilibrium बोला था. What was that relation? Rate of the forward, rate of the backward, rate constant, equilibrium constant, how they were related? Z e raised to minus delta H by RT. Correct. The equilibrium constant is given as Z e raised to minus delta H by RT, where this equilibrium constant in turn was equal to Kf by Kb. Aki nahi? Yes, sir. तो बेसिकली किसी भी रिएक्शन के लिए थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम एंड काइनेटिक्स ऑल थ्री आर इक्वली इंपॉर्टेंट, राइट? सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इज फिजिबिलिटी, बताता है कि क्या वो रिएक्शन होगा या नहीं होगा. नाउ देयर आर सम लिमिटेशंस और ड्रॉबैक्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स एज वेल. First one, it gives no information regarding the rates at which physical and chemical processes occur. मतलब अगर कोई रिएक्शन थर्मोडायनामिकली फिजिबल है लेकिन अगर वो काइनेटिकली फिजिबल हो नहीं होगा, देन देयर इज नो यूज ऑफ दैट रिएक्शन. मतलब एग्जांपल देता हूं. इफ आई टॉक अबाउट कार्बन, डज इट बर्न इन ऑक्सीजन? Yes. आकी नहीं? यस, एंड इट डज बर्न टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड. मतलब ये रिएक्शन feasible है. We know that this reaction takes place. But if I talk about diamond, which is a form of carbon only, तो डायमंड में भी कार्बन है तो वो भी जलना चाहिए और वो भी CO2 बनाकर उड़ जाना चाहिए. डायमंड नेकलेस है, किसी ने पहना, तो थर्मोडायनामिक्स ये बोलता है कि उसका कार्बन जो है वो बर्न होकर उड़ जाना चाहिए. ऐसा होता है क्या? No, sir. नहीं. We know that diamonds are forever. ठीक है. डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस विच इज अवेलेबल एंड द रीजन इज द कोवेलेंट नेटवर्क ऑफ कार्बन एटम्स. तो यहां पर जो कार्बन है और यहां पर जो नेटवर्क ऑफ कार्बन एटम्स है वो फेज वाइज अगर स्ट्रक्चरली देखें तो डिफरेंट है. तो thermodynamically even diamond should burn, but it doesn't happen. Even if it was to burn, then it would take years and years for it to actually burn to give the carbon dioxide, which would not happen for a very very long time. ठीक है. मतलब काइनेटिकली ये रिएक्शन जो है इतना ज्यादा स्लो है कि प्रैक्टिकली ये रिएक्शन होगा ही नहीं. तो कहना इसे कि बर्निंग ऑफ कार्बन इज थर्मोडायनामिकली फिजिबल, बट जो डायमंड वाला रिएक्शन है दैट इज काइनेटिकली वेरी वेरी स्लो, सो स्लो दैट प्रैक्टिकली इट डजंट अकर, इट डजंट हैपन. Understood the difference between thermodynamics and kinetics? Yes, sir. Similarly, एक और example. Hydrogen and oxygen combines to give H2O. Is this reaction feasible? Yes. हाँ, हमें पता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होकर H2O बनता है, but it is feasible under some conditions of temperature and pressure and also the catalyst. बराबर. ऐसा तो नहीं है कि एयर में एटमॉस्फेयर है, आप एक बोतल में हाइड्रोजन लेकर घूमो, जब प्यास लगी तो बोतल ओपन किया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होकर पानी बन गया और अपना प्यास बुझा दिया. तो ऐसा तो नहीं होने वाला है. ठीक है. तो ये वाला रिएक्शन ऑब्वियसली फीजिबल है, बट इट इज फीजिबल अंडर सम स्पेशल कंडीशंस ओनली. ठीक है. तो ऐसा नहीं कि कोई भी रिएक्शन जो थर्मोडायनामिकली फीजिबल होगा
वो आप डायरेक्टली कर सकते हो. यू नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड द एक्सटेंट एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड द रेट एसोसिएटेड विद दैट. इसीलिए तीनों एस्पेक्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. तो थर्मोडायनामिक्स रेट्स के बारे में कुछ बात नहीं करता है. इट डज नॉट टेल अबाउट द मैकेनिज्म, एंड यू नो हाउ इंपॉर्टेंट द मैकेनिज्म इज. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने बहुत सारे रिएक्शंस मैकेनिज्म बेस्ड समझा है, एंड विदाउट मैकेनिज्म लॉट ऑफ थिंग्स आर नॉट क्लियर. ठीक है. तो इट डज नॉट टेल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द प्रोसेस एज इट इज कंसर्न ओनली विद इनिशियल एंड फाइनल. रिएक्टेंट क्या था, प्रोडक्ट क्या है, थर्मोडायनामिक्स उसमें इंटरेस्टेड है. कैसे रिएक्शन हुआ उसमें कोई जानकारी, इट डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन. देन it is concerned with properties of macroscopic system, meaning involving very large quantities of entities like atoms, molecules, or ion. It is not concerned with properties of microscopic system, which consist of single or few species. लेकिन ऐसा भी ब्रांच ऑफ थर्मोडायनामिक्स है जिसको स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं, which deals with microscopic system, यानी एक एटम, 10 एटम, 15 एटम की जो बात करता है वो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स होगा. ठीक है. तो हम जो थर्मोडायनामिक्स की बात करते हैं ना, वी ऑलवेज टॉक इन बल्क, अ सिस्टम इन बल्क. जैसे यहाँ पर वाटर विच इज प्लेस्ड इन अ कंटेनर इज एट 50 डिग्री सेल्सियस. मुझे इसको हीट करके 80 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाना है. तो थर्मोडायनामिक्स किस पे इंटरेस्टेड है कि इसका इनिशियल टेम्परेचर 50 था और फाइनल टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए. अब इसके बीच में इंडिविजुअल मॉलिक्यूल ने कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया, कितने काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है, कौन सी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है. ओवरऑल, if it is 1 mole of water which consists of Avogadro number of molecules, they all are heated up at 80 degree Celsius to reach the temperature to 80 degree Celsius. So that is called macroscopic system. So हम जो थर्मोडायनामिक्स की बात करते हैं वो बल्क सिस्टम की बात करते हैं, मैक्रोस्कोपिक की बात करते हैं. And fourth point is more or less similar. It does not tell anything regarding the rate or speed of a physical or a chemical change. Fine. So mainly thermodynamics feasibility को बताएगा, और वो feasibility तक पहुंचने के लिए we need to understand all the basic parameters which we are going to use to understand that. So let's start with this, the basic concepts in thermodynamics. So you can observe there is a reaction which is taking place in a conical flask. एक कोई reaction हो रहा है. तो यहाँ पर यहाँ जो reaction हो रहा है, there would be some changes in the thermodynamic parameters. Thermodynamic parameters are those which are measurable and with changes. जैसे अगर ये gaseous system है तो pressure, volume, temperature, moles, ये सारे इसके parameters हो गए. ठीक है. तो ऐसा पार्ट जहां पर the thermodynamic variables are changing and we are studying those changes, that part is called as a system in thermodynamics. Everything else except the system is called surroundings. Everything else is called the surroundings. अब सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हमें एक बाउंड्री तो चाहिए ना, सिस्टम कहां तक है. ठीक है. तो यहां पर अगर आप देखोगे तो दिस कोनिकल फ्लास्क एक्ट्स एज द बाउंड्री. The glass conical flask acts as the boundary which is separating the system and the surroundings. मतलब मेरा सिस्टम इतना ही है और वो बाउंड्री ने डिफाइन कर दिया. ठीक है. एंड सिस्टम एंड सराउंडिंग एज अ होल इज कॉल्ड यूनिवर्स. एक्चुअली वेग वर्ड है, बट यूनिवर्स के बाहर कुछ भी नहीं है, इसलिए सिस्टम और सराउंडिंग पूरा मिलाओ तो यू एक्चुअली गेट द यूनिवर्स. ठीक है. तो यहां पर ये सिस्टम जो है we can define as that part of the universe which is directly under thermodynamic observation, where the thermodynamic parameter changes. System is the part of the universe which is directly under thermodynamic observation. Everything except the system is the surrounding and the separation is called boundary. अब जब हम बाउंड्री की बात करते हैं ना, तो बाउंड्री अलग अलग टाइप हो सकता है. फर्स्ट, इट कैन बी रियल
और इमेजिनरी। यहाँ पर कोनिकल फ्लास्क है एक बाउंड्री, तो वो रियल बाउंड्री है। लेकिन मान लो एक बॉन फायर आप अरेंज कर रहे हो, तो उसमें यू आर हीटिंग द लॉग्स ऑफ वुड। इन दैट केस, इज देयर अ बाउंड्री विच इज सेपरेटिंग द सिस्टम एंड द सराउंडिंग? No. नहीं। तो वहां पर एक बाउंड्री आप इमेजिनरी क्रिएट करोगे कि जितना वहां पर बर्निंग हो रहा है लॉग्स ऑफ वुड का, दैट इज अ सिस्टम। बाहर का पार्ट पूरा जो है वो सराउंडिंग्स हो जाएगा। और इस केस में बाउंड्री है ही नहीं, मतलब वी हैव टू जस्ट इमेजिन कि ये पार्ट इतना इतना सिस्टम है। ठीक है। दूसरा, बाउंड्री कैन बी रिजिड और फ्लेक्सिबल। इस केस में जो कोनिकल फ्लास्क है वो ऑब्वियसली रिजिड है, लेकिन अगर बलून की बात करें तो बलून जो है वो फ्लेक्सिबल है, तो उसका जो बाउंड्री है वो फ्लेक्सिबल रहेगा। तीसरा, बाउंड्री कैन बी डायाथर्मिक और ए डायाबेटिक। डायाथर्मिक मतलब कंडक्टिंग, जहां पर एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है, और ए डायाबेटिक ऐसा बाउंड्री है जहां पर एनर्जी का एक्सचेंज इज नॉट पॉसिबल। हियर यू कैन अंडरस्टैंड, डायाथर्मिक है मतलब एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, हीट का एक्सचेंज हो रहा है, बट ए डायमेटिक में एनर्जी या हीट एक्सचेंज इज नॉट अलाउड। So that's adiabatic boundary or adiabatic wall. Understood? Yes, sir. Yes, sir. So having understood the system, which is important part of thermodynamics, we will understand the types of system. अब इसको समझने के लिए तीन simple examples. Consider there is hot tea placed in a cup. If you just leave this cup for an hour, then obviously यहाँ का जो चाय है वो ठंडा हो जाएगा, and that is because the energy from the tea has lost to the surroundings. मतलब यहाँ पर there is the exchange of heat from the system to the surroundings. And will the amount of tea in the cup change? Will the matter change? No. Think about it. Yes. Yes. ये जो भाप बन रहा है, वेपर्स बन रहा है, वो किसके थ्रू बन रहा है? मतलब ड्यू टू द वाटर विच इज अवेलेबल इन द टी, तो उसकी वजह से ये वेपर्स क्रिएट हो रहा है। मतलब देयर विल बी सम अमाउंट विच विल बी डिक्रीज, मतलब चेंज तो हो रहा है। तो दिस टाइप ऑफ सिस्टम विच इज having the heat transfer and the mass transfer possible is simply called an open system. Hot tea in an open cup is an example of open system. मतलब यहाँ पर एनर्जी भी एक्सचेंज होगा, डेल्टा E will be non-zero and even the delta M will be non-zero. बट अगर उसी हॉट टी को इफ यू कवर इट विथ अ प्लेट, अब क्या होगा? Delta E will be non-zero, delta M will be zero. Here the mass will be conserved, क्योंकि यहाँ पर ये जो कप है ये डायाथर्मिक है, मतलब यहाँ से हीट तो निकलेगा ना, तो चाहे ठंडा तो होगा लेकिन जो अमाउंट है वो चेंज नहीं होगा। तो सच टाइप ऑफ सिस्टम इज अ क्लोज सिस्टम विच अलाउज हीट ट्रांसफर बट नॉट मास। मतलब डेल्टा E विल बी नॉन जीरो बट डेल्टा M विल बी जीरो। एंड अगर इसी हॉट टी को आप थर्मोस फ्लास्क में डाल देते हो तो यहाँ पर क्या होगा? Also, Both will be conserved. Such type of system is called an isolated system, जहां पर there is no heat transfer, no mass transfer, both are conserved. Delta E is zero and delta M is also zero. So based on the exchange of energy and matter between the system and the surroundings, the system are of three types: open, closed and isolated. अब कुछ day to day life examples. If I talk about human body, what type of system you can classify? अपना body, Open system. open system, क्योंकि बॉडी में से जो हीट बाहर निकल रहा है that can be exchanged in the form of sweat. बराबर, तो यहाँ पर मैटर और एनर्जी दोनों ही एक्सचेंज हो सकता है। मतलब ह्यूमन बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओपन सिस्टम। नाउ इफ आई टॉक अबाउट मोबाइल फोन्स और द लैपटॉप्स, Hmm.
वो क्लोज सिस्टम होगा, क्योंकि उसमें से हीट जो है वो तो डिसिपेट हो रहा है ना, हीट का एक्सचेंज हो रहा है, बट उसके जो पार्ट्स है वो तो गायब नहीं होता है ना, obviously the matter doesn't change in that. Mobile phone is a closed system, and universe will be considered as an isolated system. मतलब whatever interconversions of energy and matter takes place, that takes place within the universe only, and that is why we consider the universe as an isolated system. Fine. Yes, sir. Then the systems classified based on composition. So it can be homogeneous or heterogeneous. जैसे सैंड को अगर पानी में डाला तो सैंड के पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाएंगे, और यहाँ दो फेजेस एग्जिस्ट करेंगे, उसको बोलते हैं हेट्रोजेनस. शुगर एंड वाटर या सॉल्ट इन वाटर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, ऑब्वियसली बिफोर द मैक्सिमम लिमिट. तो सच टाइप ऑफ मिक्सचर वुड बी होमोजेनस, मतलब दे बोथ एग्जिस्ट इन अ सिंगल फेज. And now the most important part, macroscopic properties and its types. तो जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि थर्मोडायनामिक्स इज डीलिंग विथ ओनली मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स, मतलब द सिस्टम्स विच आर इन बल्क, ह्यूज नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस. ठीक है, तो उन बल्क प्रॉपर्टीज को मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं. जैसे अगर कोई गैसियस सिस्टम है तो उसमें द मेजरेबल प्रॉपर्टीज कुड बी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल्स, डेंसिटी. All these measurable properties which are associated with the system are called macroscopic properties. अब ये macroscopic properties दो टाइप का होता है. Before revealing the name, I'll give you the example so that it's easy to understand. Let's say once again, burning of carbon giving CO2 reaction consider कर रहे हैं. We know that this burning or the combustion reaction is exothermic. So the delta H will be negative, and let's say it is minus X kilojoule per mole. मतलब ये X किलोजूल की एनर्जी कितने अमाउंट ऑफ कार्बन के लिए है? हाउ मच अमाउंट? 1 mole. 1 मोल यानी 12 ग्राम. यानी 12 ग्राम कार्बन जलेगा तो X किलोजूल की एनर्जी रिलीज होगी. अब ये 12 ग्राम की जगह इफ आई replace it with 24 grams, will the same amount of energy be released? No. Obviously not. अब जो X energy release हो रही थी, now in case of 24 grams it will get doubled. मतलब can I say this delta H is dependent on the amount of matter which is burnt in the system? अरे हाँ कि नहीं? Yes, sir. This delta H as a property, is it dependent on the amount of matter which is present in the system? Yes. No, it's not. So, why? So it's kilojoule per mole. या पर मोल मतलब 12 ग्राम के लिए X है. लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इधर 2 ग्राम का कार्बन जलाया, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन और 2 CO2, how much will be the value of delta X now? X by 6. X by 6. Why? अरे पर मोल मतलब 12 ग्राम ना. Mole, sorry. 2x. 2x. वो जो डेल्टा H रहता है ना पर मोल वाला, उसको हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी बोलते हैं. दैट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर पर मोल. तो जो पर मोल या मोलार एंथैल्पी होता है ना, वो चेंज नहीं होगा. बट डेल्टा H एज अ प्रॉपर्टी, इज इट डिपेंडेंट ऑन हाउ मच अमाउंट ऑफ मैटर इज बर्न्ड? द आंसर इज यस. अगर मुझे इस रिएक्शन का एंथैल्पी देखना है तो मैं यहाँ 2x किलोजूल लिखूंगा, राइट? Yes, sir. Yes. So such type of properties which are dependent on the amount of matter in the system are called extensive properties. Are called extensive properties. Versus ऐसी कुछ properties होती है जो मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है. जैसे मान लो पानी है 1 मोल ऑफ वाटर,
It is having the density 1 gram per ml. Now, if I consider 2 moles of water, what will be its density? Same. सेम ही रहने वाला है, ठीक है। सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट, पानी बॉईल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब वो 10 ग्राम लो, 15 ग्राम लो, 100 ग्राम लो, उसका बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहने वाला है। तो इज इट डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर नाउ? No. No. Such properties which are independent of the amount of matter are called intensive properties. Are called intensive properties. तो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव में किसी भी प्रॉपर्टी को क्लासिफाई करने का एक सिंपल शॉर्टकट है। खाली ये पूछो अपने आप से कि अगर उसका अमाउंट डबल किया तो प्रॉपर्टी चेंज होगा कि नहीं होगा। जैसे 1 मोल वाटर है, अगर 2 मोल्स किया तो क्या डेंसिटी चेंज होता है? No. नहीं। मास चेंज होता है? Yes. हाँ, 18 से 36 ग्राम हुआ। वॉल्यूम चेंज होगा? Yes. यस। मतलब जो चेंज हो रहा है वो एक्सटेंसिव, जो नहीं होता है वो इंटेंसिव। सिंपल। So in short, mass, volume, and all the different forms of energy are extensive versus density या फिर viscosity of a liquid, refractive index, boiling point, freezing point, temperature, pressure, all are intensive। ठीक है। तो अब यहां पर दो चीजें और, the ratio of two extensive properties is always intensive. Best example, mass and volume are extensive and their ratio, which is density, is intensive। है ना। मतलब डिपेंडेंसी को अगर आप डिवाइड करोगे तो बेसिकली उसका जो डिपेंडेंसी है विथ रिस्पेक्ट टू द अमाउंट ऑफ मैटर वो चला जाएगा। मास बाय वॉल्यूम विल बिकम डेंसिटी। ठीक है। तो रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज ऑलवेज इंटेंसिव। दूसरी बात, कैन यू ऐड द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज? मास प्लस मास, 18 ग्राम पानी प्लस 18 ग्राम पानी इक्वल टू 36 ग्राम पानी। मतलब दे आर एडिटिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कैसी होती है? दे आर एडिटिव। ठीक है। बट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर नॉन एडिटिव। एक मोल का डेंसिटी 1 ग्राम है, एक मोल प्लस एक मोल 2 मोल होता है, लेकिन उसका डेंसिटी फिर भी 1 ग्राम ही रहेगा ना। मतलब डेंसिटी इज नॉट एन एडिटिव प्रॉपर्टी, इट इज नॉन एडिटिव। समझा? Yes, sir. Look at this. Extensive properties. Any property of the system whose value depends on the amount of matter is extensive, they are additive. Example में mass, volume, surface area, internal energy, enthalpy, entropy, Gibbs free energy, heat, work, heat capacity, resistance, ये सब extensive है। और इंटेंसिव में टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो सॉल्वेंट के लिए डिफाइन होता है। तो पानी का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना भी अमाउंट ले लो फिक्स ही रहता है। देन लुक एट दिस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलार हीट कैपेसिटी, दे आर इंटेंसिव। जैसे लास्ट एग्जांपल में यहां पर डेल्टा एच नॉट, ये मोलर एंथैल्पी है यानी पर मोल है, तो ये इंटेंसिव हुआ। लेकिन जो डेल्टा एच एज अ प्रॉपर्टी है वो एक्सटेंसिव है। समझता है? Yes, sir. ठीक है। तो यहां पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कोई भी प्रॉपर्टी जो स्पेसिफिक या मोलर से स्टार्ट होता है ना वो हमेशा इंटेंसिव है, क्योंकि स्पेसिफिक हमेशा 1 ग्राम के लिए डिफाइंड होता है और मोलर हमेशा 1 मोल के लिए डिफाइंड होता है। एंड आई होप यू नो व्हाट इज हीट कैपेसिटी। क्या होता है? पता है कि नहीं पता है?
Amount of heat required to raise the temperature by 1 degree Celsius. Amount of heat required to raise the temperature of a substance by 1 degree Celsius और 1 Kelvin. अगर सब्सटेंस आपने डिफाइन नहीं किया है तो वो हीट कैपेसिटी है. अगर आपने सब्सटेंस को 1 ग्राम बोला तो वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. अगर सब्सटेंस 1 मोल का है तो वो मोलर हीट कैपेसिटी. तो हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव है, मोलर और स्पेसिफिक इंटेंसिव हुआ. वैसे ही वेपर प्रेशर जो बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ईएमएफ ऑफ अ सेल, मोलर कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टिविटी होता है दैट इज इंटेंसिव. अगेन रेजिस्टेंस एक्सटेंसिव है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रो इंटेंसिव है. ठीक है, तो इसके ऊपर एमसीक्यूज जब आते हैं ना तो ध्यान से उसको एनालाइज करना. अच्छा, नाउ टेल मी कॉन्सेंट्रेशन किस में कैटेगराइज करोगे? मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मोलैरिटी. Intensive. अब तो हिंट सिंपल था, नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम, दीज आर एक्सटेंसिव. और दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो हमेशा इंटेंसिव होता है, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी. ठीक है, ये एक मिस आउट हो गया है एग्जाम्पल में. आप लिख लो, इसको ऐड कर लो, कॉन्सेंट्रेशन. नोट सामने रखो प्लीज. Now, after these properties, next part is about state variables, state function, and path function. बहुत interesting part. State variables. Now, किसी भी thermodynamic system को define करने के लिए we need to have the values of the measurable properties. So, मान लो ये एक gaseous system है और इसकी कुछ measurable properties है, pressure, volume, temperature और moles. ठीक है, मान लो मैं यहां पर एक आइस ब्लॉक को कंसिडर करता हूं. तो इस आइस ब्लॉक का अगर कुछ स्टैंडर्ड पैरामीटर्स की बात करूं तो एट अ प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर एंड द टेम्परेचर 273 केल्विन एट द फ्रीजिंग पॉइंट इट वुड ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर फॉर 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस. पीवी इक्वल टू एनआरटी से कैलकुलेट हो जाएगा. यस और नो? अरे हाँ कि नहीं? Yes. तो इस पर्टिकुलर सिस्टम में देर आर सम thermodynamic properties which are measurable. So these properties which define the system are called state variables. तो यहाँ पर P, V, N और T इनको state variables बोलते हैं. And the state variables values put together defines the state of the system कि वो system कौन से state में है. ठीक है, तो मैं कंसिडर करता हूं इसको कि ये कोई इनिशियल स्टेट में है. ठीक है, अब इस सिस्टम को अगर मैं कोई चेंजेस कर दूं, मान लो इस टेम्परेचर को मैं 373 केल्विन कर दूं, विल द अदर पैरामीटर्स चेंज? अरे हाँ या ना? मैंने 273 से 373 कर दिया तो क्या चेंजेस आएगा कि नहीं सिस्टम में? Yes. आएगा, because 373 Kelvin में now the ice would be converted to water and water would be converted into gas. So now the vapors are going to occupy a much larger volume. So for 1 mole of the same substance at the pressure of 1 atmosphere, the volume is definitely going to change. ठीक है, मतलब अगर मैं किसी थर्मोडायनामिक पैरामीटर यानी स्टेट वेरिएबल को चेंज कर दूं तो डेफिनेटली बाकी वेरिएबल्स भी चेंज हो सकते हैं. If not all, one of the variable is going to definitely change. And now, after some period of time, it attains some constant values. And now I can say the system is in a new state. ठीक है, with the system defined as P2, V2, N2 and T2. अब इस स्टेट को मैं फाइनल स्टेट बोल देता हूं.
ठीक है, so Yes. the variables which define the system are basically the state variables, and with the state variables we can define the state of any given system. ठीक है, अब यहाँ पर इस इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के बेसिस पे there are two properties which are defined. These are also the thermodynamic properties only, state function and path function. Now इसको समझने के लिए ना एक एनालॉजी देता हूँ सिंपल वाला टू अंडरस्टैंड. जितना एग्जांपल से क्लियर रखोगे उतना बेटर समझ में आएगा. So let's consider there is a high rise, a building with 20 floors and 21st floor पे टेरेस है और एक बंदा ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा हुआ है. उसको टेरेस पे पहुंचना है, 21st फ्लोर पे पहुंचना है. Now tell me what are the ways he can reach the terrace? Steps. By lift or by stairs. चोर रहेगा तो पाइप बाई चढ़ के भी जा सकता है. अंबानी रहेगा तो स्पेशली हेलीकॉप्टर लाएगा, हेलीपैड अवेलेबल है तो हेलीपैड पे लैंड करके फिर टेरेस पे पहुंचेगा. मतलब तरीके बहुत सारे हैं. ठीक है, नाउ under all these conditions, different ways in which he can reach the terrace, is the altitude of the building changing anytime? No. No. So can I say the altitude is dependent only on the initial state of the person, which was the ground floor, and the final state, which is the terrace. अब वो कैसे टेरेस पे पहुंचा, ऑल्टीट्यूड को कोई लेना देना नहीं है. बराबर? Yes, sir. That's why I can say that altitude is a state function. नाम में definition है. It's that property which depends only on the initial state and the final state. ठीक है, बट अगर मैं वर्क डन की बात करूं तो लिफ्ट से अगर जाता है या स्टेयर्स से जाता है तो उस बंदे का जो एनर्जी यूटिलाइज होगा वो डिफर करेगा कि नहीं? Yes. Yes. So that property which will depend on the path taken to reach the final state from the initial state would be called as a path function. जो इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे डिपेंड करता है वो स्टेट फंक्शन, जो पाथ पे डिपेंड करता है वो पाथ फंक्शन. ठीक है, तो अब अगर मैं कोई थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज की बात करूं लाइक वॉल्यूम, अगर समझ में आया है तो कैन यू टेल मी इज दिस अ स्टेट फंक्शन और अ पाथ फंक्शन? State function. स्टेट फंक्शन. इसका एक सिंपल एग्जांपल देता हूं. मान लो एक लेबोरेटरी में यू आर परफॉर्मिंग सम एक्सपेरिमेंट एंड योर लैब असिस्टेंट आस्क यू टू गेट अ कोनिकल फ्लास्क फिल्ड विथ 1 लीटर ऑफ वाटर. एम्प्टी कोनिकल फ्लास्क देता है, बोलता है 1 लीटर का पानी भर के आओ. ठीक है, नाउ व्हाट आर द वेज यू कैन गेट द वाटर इनटू द फ्लास्क? पानी कैसे लाओगे उस फ्लास्क के अंदर? या तो नल से भर दोगे. अब मान लो उस दिन वो नल खराब है और पूरे कॉलेज में पानी नहीं आया, तो आप बड़ा दिल रख के अपने बोतल में से 1 लीटर पानी उसमें डाल के लेकर जाओगे. बोतल में भी पानी खत्म हुआ तो कैंटीन में जाओगे, कैंटीन में भी खत्म हुआ तो कहीं और से जाओगे. अल्टीमेटली वो फ्लास्क 1 लीटर पानी के साथ भरा होना चाहिए. तो उसका इनिशियल स्टेट था एम्प्टी फ्लास्क, फाइनल स्टेट है 1 लीटर फिल्ड विथ वाटर. ठीक है, तो फाइनली ये कैसे भरा उससे वॉल्यूम का कोई लेना देना नहीं है. लाइकवाइज टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारे स्टेट फंक्शंस है जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. ठीक है, तो when I talk about state function, the examples under that will be pressure, volume, temperature, internal energy, enthalpy, entropy and all other forms of energy. तो उसको मैंने याद रखने के लिए PVT ट्रिपल ई दिया है so that you can remember the examples. And path function में homework मतलब heat and work. So heat and work are the two most important examples of path function जो path के ऊपर डिपेंड करता है. और थर्मोडायनामिक एस्पेक्ट से भी इसको आगे जस्टिफाई करेंगे कि क्यों हीट एंड वर्क आर द पाथ फंक्शंस. वैसे समझ में आ गया है, स्टिल वी विल जस्टिफाई लेटर. आगे
thermodynamic equilibrium and its types. Now, when we talk about equilibrium, we already know chemical equilibrium. It is established when the rates of the forward and the backward reaction becomes equal and the concentrations become constant. This is chemical equilibrium. But thermodynamic system will be said to be in equilibrium when it attains three equilibrium simultaneously. वो तीन equilibrium कौन सा है? First is thermal equilibrium, where the temperature of the system doesn't change with time. Chemical equilibrium, where the concentration of the substances in the system doesn't change with time. And mechanical equilibrium, where the net force acting on the substances in the system is zero. तो फिजिक्स के अंदर आप बहुत सारी चीजें मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के रिस्पेक्ट से पढ़ोगे. केमिस्ट्री के अंदर हमारे लिए केमिकल इक्विलिब्रियम इंपॉर्टेंट है एंड थर्मल इक्विलिब्रियम. बट thermodynamic equilibrium will be established only when all the three types of equilibrium are attained simultaneously. Fine with this? Yes. Now coming to the next topic, another important topic, the thermodynamic processes. तो अब प्रोसेस क्या होता है? अगर मान लो एक सिस्टम है which we have defined with the state variables P1, V1, T1, N1. जब तक ये सिस्टम इन स्टेट वेरिएबल्स के साथ फिक्स्ड वैल्यूज के साथ है, can we say the system is in thermodynamic equilibrium? ये सिस्टम के स्टेट वेरिएबल्स टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहे हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूं ये सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है? अरे हाँ या ना? हाँ, वो तीन टाइप का इक्विलिब्रियम विल बी एस्टैब्लिश्ड ओनली व्हेन द स्टेट वेरिएबल्स आर नॉट चेंजिंग विद टाइम. स्टेट वेरिएबल चेंज हो गया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा ना, और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा तो यहाँ पर वैल्यूज में भी चेंजेस आएगा. करेक्ट? सो until and unless the state variables are not changing with time, we will say that the system is in thermodynamic equilibrium. So let's say ये एक equilibrium state में है, equilibrium 1. अब मैंने यहाँ पर कोई पैरामीटर में चेंजेस कर दिया, तो चेंज करने के बाद सिस्टम एक नए स्टेट में आ जाता है with the new state variables defined as P2, V2, N2 and T2. तो अब अगर ये वैल्यूज फिक्स हो जाते हैं एंड इट डजंट चेंज विद टाइम, वी कैन से द सिस्टम इज नाउ इन अ न्यू इक्विलिब्रियम स्टेट, लेट्स से इक्विलिब्रियम 2. So now a process is nothing but the path which is used to change from one equilibrium state into another. Process क्या होता है? It's a simple path which is carried out or used to change from one equilibrium state into another. अब ये पाथ में अलग अलग वेज में आप इक्विलिब्रियम स्टेट चेंज कर सकते हो. ठीक है? तो नाउ वी हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस, दैट इज फर्स्ट इज आइसोथर्मल. नाम से समझ में आता है, दिस इज अ प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट, मीनिंग डेल्टा T इज इक्वल टू 0. अब आगे हम एक थर्मोडायनामिक पैरामीटर को पढ़ेंगे विच इज इंटरनल एनर्जी. सिस्टम के अंदर जो भी टोटल एनर्जीज होती है दैट्स इंटरनल एनर्जी, अभी के लिए याद रखें. और इंटरनल एनर्जी इज एंटायरली अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. मतलब अगर सिस्टम का टेम्परेचर चेंज ना हो तो उसका इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहता है, यानी आई कैन से डेल्टा U इज इक्वल टू 0. कुछ कुछ बुक्स में इंटरनल एनर्जी को E से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाना. U या E दोनों ही इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है.
इट्स इंटरनल एनर्जी। नाम से थोड़ा समझ में आ जाएगा, एनर्जी इनसाइड द सिस्टम, एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एनर्जी इनसाइड द सिस्टम। ठीक है। अब मान लो कोई केमिकल रिएक्शन आइसोथर्मल प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। ठीक है, तो लेट्स से एक कोनिकल फ्लास्क है जिसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और इस केमिकल रिएक्शन में ये सब्सटेंस जो है इट इज डीकंपोजिंग। तो डीकंपोजिशन इज व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन, एंडो या एक्सो? And डीकंपोजिशन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। भाई कोई चीज को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, रिलीज नहीं होती है। तो डीकंपोजिशन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब मुझे बताओ, अगर ये एंडोथर्मिक है तो इसको एनर्जी लगेगी, तो कैन इट टेक इट फ्रॉम द सिस्टम इफ इट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस? क्या वो सिस्टम से हीट ले सकता है? आइसोथर्मल मतलब क्या? वी हैव टू मेंटेन द टेम्परेचर। तो मैं पूछ रहा हूं कि अगर ये सब्सटेंस एंडोथर्मिक प्रोसेस फॉलो कर रहा है तो क्या ये सिस्टम का एनर्जी ले सकता है? no, द आंसर इज नो, बिकॉज सिस्टम की एनर्जी लेगा तो टेम्परेचर में ड्रॉप आ जाएगा, तो टेम्परेचर चेंज होगा कि नहीं होगा? yes, sir. yes, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस होने के लिए सिस्टम कैसा होना चाहिए? शुड इट बी ओपन, क्लोज्ड और आइसोलेटेड? Insulated. Isolated. आइसोलेटेड। तो अगर आइसोलेटेड होगा तो बाहर से हीट कैसे लेगा? आइसोलेटेड मतलब ए डायमेटिक वॉल होता है ना, एनर्जी का तो एक्सचेंज होता ही नहीं है। So, but if it takes energy from outside, then delta U won't be zero, right? डेल्टा यू इज नॉट रिलेटेड टू द सराउंडिंग्स। पर टेम्परेचर जब तक चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट अभी रिलेट मत करो। मुझे खाली इतना बताओ कि जो टेम्परेचर है अगर मुझे मेंटेन करना है तो कैन आई यूज द सिस्टम का एनर्जी टू ब्रेक द सब्सटेंस? No. I can't. So obviously I have to get the energy from the external source which is nothing but surrounding. पर सराउंडिंग से अगर लेना है तो एनर्जी का एक्सचेंज अवेलेबल होना चाहिए कि नहीं? Yes, sir. यस। मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस हैज टू बी कैरिड आउट इन एन ओपन सिस्टम। क्लोज्ड भी हो सकता है अगर मैटर को कंजर्व करना है तो, लेकिन ओपन सिस्टम इसलिए होना चाहिए क्योंकि हीट का एक्सचेंज अगर आप अवेलेबल नहीं कराओगे तो टेम्परेचर को कांस्टेंट कैसे रखोगे? समझा? Yes, sir. एक एग्जांपल, व्हेन द डोर ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज ओपन इट बिकम्स एन ओपन सिस्टम। रेफ्रिजरेटर का डोर ओपन करते हो तो ओपन सिस्टम हो गया कि नहीं? Yes, sir. अब मुझे बताओ, व्हेन द डोर इज ओपन सराउंडिंग बिकम्स वार्मर और इट बिकम्स कोल्डर? सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ता है कि कम होता है? कम होता है. हम ठंडा लगता है ना? ऐसा लगता है, ऐसा लगता है क्योंकि आर बॉडी इज एट अ टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री सेल्सियस और वहां पर जो टेम्परेचर है ऑब्वियसली कम है। बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस यू फील दैट इट इज कोल्डर, बट एक्चुअली जब हम रेफ्रिजरेटर का डोर ओपन करते हैं द चैलेंज टू द रेफ्रिजरेटर इज टू मेंटेन द टेम्परेचर कांस्टेंट, क्योंकि अंदर की चीजें जो ठंडी हो चुकी है वो गर्म नहीं होनी चाहिए ना, और जो भी उसका हीट है वो बाहर फेंकने की कोशिश करेगा आइदर थ्रू द कंप्रेसर या फिर जब डोर ओपन किया तो हीट फेंकेगा कि नहीं बाहर? तो एक्चुअली यहां पर जब हीट को बाहर सराउंडिंग्स में फेंकता है तो सराउंडिंग बिकम्स वार्मर। यू फील कोल्डर बिकॉज यू आर एट अ मच हायर टेम्परेचर एज कंपेयर टू दैट टेम्परेचर इनसाइड द सिस्टम और इनसाइड द रेफ्रिजरेटर। समझा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है।
ठीक है, तो यहाँ पर ओपन सिस्टम में कहने की बात यह है कि एनर्जी एक्सचेंज जो है वो होना ही चाहिए, तभी टेम्परेचर कांस्टेंट रह पाएगा या मेंटेन हो पाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, अगर कोई सिस्टम आइसोलेटेड है तो उस केस में एनर्जी का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होगा। सच टाइप ऑफ प्रोसेस, अगर कोई प्रोसेस या रिएक्शन कैरी आउट करते हैं तो इट्स कॉल्ड एज एडियाबैटिक, इट्स कॉल्ड एज एडियाबैटिक। ठीक है, तो अब मुझे बताओ वापस, अगर कोई थर्मोस फ्लास्क है जो कि एक आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल है, ठीक है, उसमें कोई सब्सटेंस जो है वो डीकंपोज होने की कोशिश कर रहा है। नाउ इसमें बताओ, कैन इट टेक द एनर्जी फ्रॉम द एक्सटर्नल सराउंडिंग्स? No. No. नहीं, बिकॉज इस केस में ये तो ए डायबिटिक वॉल है, तो एनर्जी का एक्सचेंज तो पॉसिबल ही नहीं होगा। तो यहाँ पर ये सब्सटेंस को तोड़ने के लिए सिस्टम के अंदर जितनी एनर्जी है वो यूज अप कर लेगा, तो उसकी वजह से व्हाट विल हैपन, सिस्टम का ही एनर्जी यूज कर लिया, तो सिस्टम विल बिकम कोल्डर और वार्मर, Colder. Colder. टेम्परेचर कम हो जाएगा ना। और सिमिलरली अगर ये सब्सटेंस टूट के एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो ये जो एनर्जी निकली वो बाहर तो नहीं जा सकती, तो सिस्टम के अंदर ट्रैप हो गई। इसका मतलब इस केस में टेम्परेचर बढ़ेगा। मतलब जब आप हीट को ट्रैप करके रखोगे तो टेम्परेचर चेंज होना ही है, और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखोगे तब हीट का एक्सचेंज होना ही है। हैव यू अंडरस्टूड बोथ दीज प्रोसेसेस? Yes, sir. So adiabatic process में Q becomes equal to 0 as there is no exchange of heat between the system and surrounding, but the temperature has to change and the internal energy also will change. And this needs to be carried out in an isolated system. दूसरी बात मैंने ये बोली कि अगर कोई रिएक्शन अंदर हो रहा है जो एंडोथर्मिक है, तो दैट विल लीड टू डिक्रीज इन टेम्परेचर, एंड अगर कोई एक्सोथर्मिक है जो एनर्जी रिलीज कर रहा है, दैट विल लीड टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। समझता है ये दोनों केस? Yes, sir. बोलो। अच्छा, अब दूसरी बात, मान लो अगर यहाँ पर इसके अंदर आइसोलेटेड फ्लास्क के अंदर कोई गैस है और ये गैस सडनली एक्सपांड करना शुरू करता है, तो बिकॉज ऑफ दिस कैन यू टेल मी व्हाट विल हैपन? गैस को एक्सपांड करने के लिए क्या चाहिए? Volume. वॉल्यूम फिक्स है, आइसोलेटेड है ना। क्लोज्ड कंटेनर तो वॉल्यूम तो फिक्स है ना। और Temperature. सॉरी, Temperature. टेम्परेचर यानी एनर्जी लगेगी। तो अब अगर कोई गैसियस सिस्टम एक आइसोलेटेड फ्लास्क में है जहां पर ए डायबिटिक वॉल है, तो अगर वो एक्सपांड करेगा तो वो अंदर की एनर्जी, खुद की एनर्जी लेगा ना सिस्टम की। एक्सपांड करने के लिए उसको बाहर से तो एनर्जी मिल नहीं रही है, तो सिस्टम के अंदर से ही एनर्जी लेगा। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो कैन आई से कि ए डायबिटिक प्रोसेस में अगर कोई गैस एक्सपांड कर रहा है तो दैट विल लीड टू डिक्रीज इन टेम्परेचर। Adiabatic में if a gas is expanding it will lead to decrease in temperature. Similarly अगर कोई गैस है वो कंप्रेस हो रहा है तो एनर्जी देगा देगा तो टेम्परेचर सिस्टम का बढ़ेगा, तो इट विल लीड टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। समझता है दो केसेस एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. बहुत सिंपल है समझने के लिए। आइसोलेटेड सिस्टम, ए डायबिटिक वॉल प्रोसेस अगर ए डायबिटिक है तो एक्सपांशन में टेम्परेचर घटेगा, कंप्रेशन में टेम्परेचर बढ़ेगा। फाइन। नेक्स्ट वी हैव आइसोकोरिक प्रोसेस एट अ कांस्टेंट Volume. वॉल्यूम।
So all the reactions which are taking place in a closed container, mostly all the equilibrium reactions are isochoric. तो बताया भी था मैंने. And जो भी reactions आप lab में करते हो in the open containers, they are all done at the constant atmospheric pressure, which is nothing but the 1 atmosphere pressure. मतलब वो सारे reactions will be isobaric, where the pressure is constant. Understood? Yes, sir. तो यहाँ 4 टाइप के प्रोसेसेस हमने समझे. अब इसके रिलेटेड ग्राफ. Look at this. We have a graph which is plotted for pressure versus the volume. ठीक है, PV ग्राफ प्लॉट किया है. अब यहाँ पर अगर if I talk about the isobaric process, then the pressure needs to remain constant. So we should have a line parallel to the volume axis. मतलब this green line indicates isobaric process, and a line parallel to pressure axis would indicate a constant volume. मतलब isochoric process. Then अगर मैं isothermal की बात करूं, तो if there is a gaseous system, we know that at a constant temperature, pressure is inversely proportional to volume at a constant temperature. Boyle's law, yes or no? Yes. And इसका Yes, ग्राफ sir. भी हमें पता है that the pressure and volume inverse relation is related by a rectangular hyperbola, and this is the isothermal का graph with the temperature remaining constant. Now, adiabatic जो होता है, that is having a graph similar to isothermal, but it is much steeper in comparison to isothermal. Adiabatic graph is steeper than the isothermal. Why? Because the slope of adiabatic process is given by gamma times the slope of isothermal. अब ये gamma क्या है? This gamma is called Poisson's ratio, which is having the values defined for monoatomic gas, diatomic, triatomic and polyatomic gases. शायद अगर ये सुना होगा तो वेल एंड गुड, नहीं सुना है तो गामा पॉइजन्स रेशियो होता है जो डिफरेंट एटॉमिक गैसेस के लिए डिफाइंड है, एंड इट्स वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, राइट? 1.66, 1.4, 1.3 डिक्रीज होते जाता है ना? तो ये गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल होने की वजह से ए डायबिटिक का कर्व इज स्टीपर देन द आइसोथर्मल. तो ये 4 लाइंस या 4 ग्राफ जो है वो चारों प्रोसेस को डिफाइन करता है. एंड वी कैन ऑल्सो डिटरमाइन विथ रिस्पेक्ट टू द सिंपल जनरलाइजेशन PV रेज़ टू n इक्वल टू कांस्टेंट. ये जो PV रेज़ टू n है ना, इट इज डिफाइंड फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस. पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, अब ये फिजिक्स में आप थोड़ा डिटेल में समझोगे तो इसका केमिस्ट्री में ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बट PV रेज़ टू n इक्वल टू कांस्टेंट में अगर मुझे प्रेशर कांस्टेंट करना है तो V रेज़ टू n शुड बिकम इक्वल टू 1. तो उस केस में इट शुड हैव n का वैल्यू इक्वल टू 0. यानी आइसोबैरिक में फॉर द प्रेशर टू बी कांस्टेंट n शुड बी इक्वल टू 0. अगर आइसोकोरिक करना है तो दिस P शुड बी वेरी मच नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू V. तो n का वैल्यू इन्फिनिटी रख दो. देन आइसोथर्मल में हमें पता है PV इक्वल टू कांस्टेंट होता है, मतलब PV रेज़ टू 1 इक्वल टू कांस्टेंट, तो n का वैल्यू 1 हो गया है यहाँ पर. आता है समझ में? एंड ए डायबिटिक में PV रेज़ टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है, इसीलिए n की वैल्यू गामा है और गामा हमेशा 1 से ग्रेटर होता है. गामा के बारे में और भी थोड़ा डिटेल आगे बताऊंगा. फाइन विद दिस 4 ग्राफ्स. Yes, sir. Yes, sir. Now these are various graphs for the 4 processes. So isothermal में rectangular hyperbola होगा P versus V में, लेकिन अगर V या P versus temperature करोगे तो it will be a line parallel to V या P axis. Adiabatic में P versus V rectangular hyperbola ही होता है, लेकिन steeper होता है curve. In fact V versus T and P versus T भी गामा से डिफाइंड होता है, इसीलिए सब में इनवर्स रिलेशन ये फॉलो करता है. ठीक है, ये ध्यान रखना फॉर ए डायबिटिक.
आइसोकोरिक में कोई इश्यू नहीं है, फॉर द वॉल्यूम कांस्टेंट इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू अनदर एक्सिस। लेकिन अगर v वर्सेस t कंसिडर करते हैं तो एट द कांस्टेंट वॉल्यूम वी नो दैट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये लोसाक्स लॉ है। ठीक है, तो ये अपना गैस लॉस के रिलेटेड ही ग्राफ हो गया। एंड आइसोबारिक एट अ कांस्टेंट प्रेशर v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, तो vt का ग्राफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग टू द ओरिजिन। और ये डॉटेड लाइन का कॉन्सेप्ट भी मैंने बताया था, कैन समवन टेल मी दिस? Liquefies at low temperature. लिक्वेफेक्शन के रिलेटेड कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो गैस जो है वो लिक्विफाई होना शुरू करेगा, तो जब तक गैस है तब तक हम एक बोल्ड लाइन को डिफाइन करेंगे, जैसे वो लिक्विफाई या सॉलिडिफाई हो जाएगा देयर इज नो लॉन्गर रिलेशन ऑफ वी टी एप्लीकेबल फॉर दैट। नाउ कमिंग टू अदर प्रोसेसेस, रिवर्सिबल और साथ में इरिवर्सिबल को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ इसको समझने के लिए एक छोटा सा एनालॉजी लेते हैं। लेट्स कंसिडर अखाड़ा, दंगल दंगल ना, सुल्तान वुल्तान देखा रहेगा तो रेसलिंग। तो यहाँ पर दो रेसलर्स हैं जो आपस में compete कर रहे हैं इन द कंपटीशन, ओके, एंड दीज रेसलर्स बिलोंग टू द 55 किलोग्राम कैटेगरी। ठीक है, अब यहाँ पर कंसिडर करो कि यहाँ पर एक टीम का जो रेसलर है अंडर 55 केजी कैटेगरी, ये बिकॉज ऑफ सम एक्सीडेंट नहीं आ चल सका कंपटीशन में। तो यहाँ पर कंपटीशन तो करवाना ही था, तो कोच ने बोला कि भाई अगर 55 केजी का अवेलेबल नहीं है तो लेट्स इंट्रोड्यूस सम पर्सन ऑफ लोअर कैटेगरी, या हाइपोथेटिकल केस है समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसके सामने ना 35 केजी वाले को भेज दिया। अब मुझे बताओ, अंडर दिस सिनेरियो विथ नो मिरेकल्स इन कंसिडरेशन, ऐसा मूवी में देखा रहेगा, 35 वाला होगा तो भी वो पछाड़ के 55 वाले को पछाड़ के जीत जाएगा। ठीक है, तो विथ नो मिरेकल्स अंडर कंसिडरेशन द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज हायर फॉर विच रेसलर, 55 या 35? ठीक है, 55। Secondly, the amount of work which is done by this person to overcome the strength of that 35 kg category person will be very high or very, very less? बहुत कम। मतलब ये सोचेगा भाई मैं तो इसको टच करूंगा ना तो ये गिर जाएगा, ले इतना कॉन्फिडेंस आ गया उसमें सामने 35 वाले को देखकर। मतलब ऑब्वियसली बोलने की बात ये है कि द अमाउंट ऑफ वर्क विच इज डन इज डिटरमाइंड बाय द अपोजिशन। अपोजिशन अगर तगड़ा रहेगा तो इसको काम ज्यादा करना पड़ेगा, अपोजिशन अगर बहुत नल्ला रहेगा तो ऑब्वियसली इसको कुछ काम ही नहीं करना पड़ेगा, या लिटिल वर्क नीड्स टू बी डन। ठीक है, जैसे क्रिकेट में भी अगर बात कर लो, ऑस्ट्रेलिया के सामने अगर कोई और टीम जैसे बांग्लादेश आ गया, वैसे अभी काफी स्ट्रांग हो गया है, बट अगर बांग्लादेश जैसा टीम था तो ऑब्वियसली उसके विनिंग के चांसेस बहुत ज्यादा थे। ठीक है, तो उसके सामने अगर इंडिया आया तो ऑब्वियसली वो टक्कर एकदम तगड़ा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर वो कोच को ना बहुत गुस्सा आया, 35 वाले को ऐसे ही पछाड़ के फेंक दिया, कंपटीशन तो जीत गया, तो उसने सोचा कि चल मैं थोड़ा हायर कैटेगरी वाले को भेजता हूँ, तो 45 वाले को भेजा। अभी भी चांसेस ऑफ विनिंग इज हायर फॉर विच रेसलर? 55। बट नाउ द एफर्ट्स which is applicable to this particular wrestler in case of 45 kg opposition will be higher as compared to previous case. Yes. ठीक है, जीत तो गया कंपटीशन लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना पड़ा उसको। ठीक है, अब यहाँ पर 2-3 दिन के बाद वो 55 केजी वाला जिसका एक्सीडेंट हो गया था वो ठीक होकर आ गया। ठीक है, और अब सामने टक्कर की पोजीशन है 55 वर्सेस 55। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज इक्वल। ऐसा नहीं यार इसको बहुत गुस्सा आया तो अब गुस्से की वजह से वो जीत जाएगा कंपटीशन, वो सारी बात नहीं कर रहे हैं, एकदम प्रैक्टिकल सिनेरियो बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 55 वर्सेस 55 दोनों का चांसेस जीतने का सेम है, और इस केस में कैन आई से अब इसको अपना मैक्सिमम अमाउंट
मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ फाइट करना पड़ेगा टू विन द कंपटीशन. डू यू अग्री? Yes, sir. Yeah, sure. ठीक है, मतलब जो वर्क डन है बाय दिस पर्सन इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ द अपोजिशन. अब हम इसको थर्मोडायनामिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं. तो थर्मोडायनामिक्स में ये जो बंदा है 55 वाला जो अपनी पोजीशन पे डटे हुए था, दिस इज द सिस्टम ऑफ थर्मोडायनामिक्स, where we can also call it as driving force system या driving force. और अगर कोई गैस एनक्लोज्ड है कंटेनर में और वो सिस्टम अगर मैं बात कर रहा हूं तो उसका जो इंटरनल प्रेशर है ना, इंटरनल प्रेशर सिस्टम का, वो उसका ड्राइविंग फोर्स होगा. इंटरनल प्रेशर जिसको मैं P से डिफाइन कर रहा हूं. मतलब चाहे मैं सिस्टम बोलूं, ड्राइविंग फोर्स बोलूं, इंटरनल प्रेशर बोलूं या P से बात करूं, मैं सब एक ही चीज को रिलेट कर रहा हूं. ध्यान देना. और सामने सामने जो अपोजिशन है वो बेसिकली थर्मोडायनामिक्स का सराउंडिंग्स है, जिसको हम अपोजिंग फोर्स बोलते हैं. अपोजिशन बोला ना मैंने, तो इसको अपोजिंग फोर्स बोलते हैं. या फिर जो बाहर से प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो, यानी एक्सटर्नल वाला प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर. और इसको मैं पी एक्सटर्नल से इंडिकेट करूंगा आज के बाद. ठीक है, तो अब थर्मोडायनामिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं इस चीज को. लेट अस कंसिडर देयर इज अ गैस व्हिच इज एनक्लोज्ड इन अ कंटेनर व्हिच इज फिटेड विद द पिस्टन. एक गैस है जो इस कंटेनर के अंदर एनक्लोज्ड है. जो गैस का प्रेशर है वो P है, जिसको मैंने इंटरनल प्रेशर बोला है, सिस्टम बोला है, ड्राइविंग फोर्स बोला है. और पिस्टन से एक्सटर्नली जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो P एक्सटर्नल है. बराबर बराबर. अब अगर यहां पर ये P जो है, if it is very much greater than the P external, what will happen to the piston? Upwards. Rise. It will be pushed upwards by the gas molecules of the container. मतलब can I say the gas is doing work against the external pressure? Yes or no? Yes, sir. Yes. ठीक है, तो यहां पर जो वर्क डन है दैट इज डिटरमाइंड बेसिकली द डिफरेंस बाय द डिफरेंस बिटवीन द टू प्रेशर्स. अगर डिफरेंस काफी ज्यादा है तो फटाक से पिस्टन ऊपर राइज हो जाएगा एंड एक नया इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन करेगा. बिकॉज इन दिस सिचुएशन P और P एक्सटर्नल अगर इक्वल है तभी तो पिस्टन अपनी पोजीशन पे फिक्स होगा ना. दैट्स वन इक्विलिब्रियम स्टेट. अब अगर P बहुत ज्यादा है तो पिस्टन को ऊपर फटाक से मूव कर देगा. और अब कब तक मूव करेगा? until both the pressure once again become Equal. 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 तो उस केस में एक नया इक्विलिब्रियम स्टेट जनरेट हो जाएगा एंड पिस्टन ऊपर की पोजीशन में मूव हो जाएगा एंड दैट विल बी अ वेरी रैपिड चेंज, राइट? अब यहां पर वापस ये कंसिडर करते हैं कि ये 55 kg वाले रेसलर का यहां पर 35 के साथ कंपटीशन था. बराबर. तो 35 वाले के साथ यहां पर अगर मैं 35 से 36 कर दूं, फिर भी कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला है No. इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग? नो. 36 से 36.5 किया, 37 किया, 37.5 किया, ऐसे करते करते 40 45 तक भी लेकर गया. छोटे छोटे चेंजेस अगर मैं करते जाऊं, क्या यहां पर बाजी पलटने वाली है? Is the probability of winning going to change? No. 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 मतलब do you understand that if P यानी सिस्टम का प्रेशर is much greater than the external pressure, the process is always going to be irreversible, because even with minute or छोटा छोटा changes on the external pressure is not going to reverse the process. Understood? Yes, sir. Okay.
अब मैं 35 से दोनों को 55-55 बराबर के कैटेगरी का बना देता हूं। अब इस केस में मैं बोल सकता हूं ये इक्विलिब्रियम वाला सिनेरियो है। अब अगर मैंने 55 को थोड़ा सा बढ़ा दिया, लेट्स से 55.5 कर दिया, अब द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज ग्रेटर फॉर होम, एक्सटर्नल। तो अब यहां पर बाजी पलट सकती है कि नहीं? द प्रोसेस कैन गेट रिवर्स्ड। मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए पी एंड पी एक्सटर्नल का डिफरेंस शुड बी small. very small, such that a very small increase in the external pressure is sufficient to reverse the process। बाजी पलटने के लिए उतना sufficient है। Clear? Yes, sir. ठीक है। अब एक और एनालॉजी समझो यहां पर। मान लो एक कंपनी है जिसमें देयर इज अ सीईओ एंड सीईओ एंड लॉट ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, तो कंपनी का जो प्रोग्रेस है वो एम्प्लॉइज के वर्किंग के ऊपर प्रोपोर्शनल होगा, और एम्प्लॉइज को काम करवाने का जिम्मेदारी सीईओ का है। तो सीईओ क्या सोचेगा, सब एम्प्लॉइज को बहुत ज्यादा एफिशिएंट बना दे, लेकिन he will take care that the employees are not over efficient, because अगर ऐसा सिनेरियो हुआ ना तो क्या हो सकता है? This company will get taken over. The company will get taken over, और ऐसा हुआ भी है प्रैक्टिकली, बराबर। तो यहां पर मैक्सिमम काम करवाने के लिए, द डिफरेंस बिटवीन द CEO and the employees should be very less, but we should always ensure that the CEO is at a little more efficient level as compared to the employees। वरना अगर एम्प्लॉइज का लेवल थोड़ा भी उससे ऊपर चला गया तो बाजी पलट जाएगी एंड द कंपनी विल बी टेकन ओवर। इसका मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस में मैक्सिमम वर्क करवाया जा सकता है। अगर मुझे सिस्टम से, एम्प्लॉय से मैक्सिमम काम करवा के लेना है तो द डिफरेंस इन द नॉलेज ऑफ द सीईओ एंड द एम्प्लॉय शुड बी वेरी लेस। समझ में आ रहा है? बट यहां देखो 55 वर्सेस 35 में 55 वाला सोचता है यार रिलैक्स्ड है यार, 35 वाला है कुछ काम ही नहीं करना है, मैं तो ऐसे ही जीतने वाला हूं, हाथ लगाऊंगा ऐसे ही गिरा दूंगा, एक पंच मारूंगा जीत जाऊंगा। मतलब यहां पर समझ में आ रहा है कि सिस्टम जो है वो ज्यादा काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने अपोजिशन को इतना स्ट्रांग नहीं बनाया है। समझा? इसीलिए इरिवर्सिबल में लिमिटेड वर्क होता है। तो अब ये कॉन्सेप्ट को अगर आप केमिकल इक्विलिब्रियम में लेकर जाते हो तो हेबर्स प्रोसेस वाज कैरिड आउट फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस, है ना? N2 plus 3H2 रिवर्सिबली गिव्स यू 2NH3, क्योंकि कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस में मैक्सिमम एफिशिएंसी निकाला जा सकता है। वी कैन गेट अ मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया थ्रू दिस प्रोसेस। हैव यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? Yes, sir. Yes. परफेक्ट। तो एक कंडीशन समझ में आया कि रिवर्सिबल में डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए, इरिवर्सिबल में डिफरेंस काफी ज्यादा होना चाहिए। रिवर्सिबल में मैक्सिमम एफिशिएंसी या काम करवाया जा सकता है, इरिवर्सिबल में लिमिटेड वर्क ही करवाया जा सकता है। और जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है ना वो फटाक से होता है, मतलब इट टेक्स प्लेस वेरी फास्ट। बराबर, जैसे यहां पर मान लो ये 2 एटमॉस्फेयर है और ये भी 2 एटमॉस्फेयर है, तो इक्विलिब्रियम पे था। अब मैं 2 से ये 4 कर दूं तो फटाक से यहां पर चेंजेस होगा और पिस्टन 2 एटमॉस्फेयर के हिसाब से ऊपर मूव करेगा, ऊपर मूव करेगा, सच दैट दोनों का इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल हो जाए तब तक। बराबर, तो यहां पर आपको समझ में आता है कि जो चेंज है दैट इज वेरी फास्ट इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। बट रिवर्सिबल में हम छोटे छोटे चेंजेस करते हैं और छोटा छोटा वर्क डन हर स्टेप में करवाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप एक
पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जंप कर रहे हो, ठीक है, मान लो एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में जंप कर रहे हो, ठीक है, कर सकते हो कि नहीं, दैट इज डिपेंडेंट ऑन वेदर इज रजनीकांत और नॉट, ठीक है, अज्यूमिंग रजनीकांत है तो वो एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पे जंप आराम से कर लेगा। अब बीच में अगर मैं उसको बोलूं ए भाई रुक, बीच में रुक जा, ठीक है, तो विल इट बी एबल टू स्टॉप बिफोर रीचिंग द फाइनल स्टेट? No. नहीं, वो नीचे गिर जाएगा और सेफ्टी नहीं होगी तो टपक जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो 5000 स्टेयर्स का एक पोजीशन है, ठीक है, और वहां से आपको नीचे आना है, तो ऑब्वियसली डायरेक्ट जंप करके नहीं आ पाओगे, आप हर एक स्टेप उतरोगे एंड स्टेप बाय स्टेप आप नीचे पहुंचते जाओगे, तो हर स्टेप में यू आर एबल टू लाइक वेट एट दैट पर्टिकुलर स्टेज, जो कि इरिवर्सिबल वाले केस में नहीं था। आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. Yes. 5000 स्टेप है, तो हर स्टेप पे आप उतरोगे तो मैं बोल सकता हूँ कि हर स्टेप पे आप एक स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन कर सकते हो, और हर स्टेप पे आपने थोड़ा थोड़ा एनर्जी कंज्यूम किया उतरने के लिए, मतलब काम किया आपने, ठीक है। तो अगर हम वर्क डन को ऐड करें हर स्टेजेस में, तो इस केस में वर्क डन मैक्सिमाइज हो जाएगा। दिस इज हाउ, अगर इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यहां लगाओगे ना, तो छोटे छोटे इंटीग्रल में अगर काम करोगे तो द सम ऑफ वर्क डन इन द ओवरऑल प्रोसेस विल बी वेरी हाई एंड इट विल बी वेरी it will be maximum. I hope reversible and irreversible is clear. Yes? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बस, तो फाइनली हम डेफिनेशंस देखते हैं जो बुक में दिया गया है। This is for reversible any process conducted in such a manner that at every stage the driving force is only infinitesimally greater than the opposing force. Infinitesimally मतलब छोटा सा चेंज। तो हर स्टेज पे, मतलब 5000 स्टेप वाला एग्जांपल सोचो, तो हर स्टेज हर स्टेप में ड्राइविंग फोर्स इज ओनली इनफाइनाइटेसिमली ग्रेटर देन द अपोजिंग फोर्स, and the process can be reversed by a slight increase in the opposing force. Is called a reversible process. Understood the definition? Yes, sir. Yes, sir. ये नोट जो है आपकी जानकारी के लिए, फॉर योर इंफॉर्मेशन, वैसे ये फिजिक्स में और डिटेल में आएगा, बट जस्ट यहाँ पर भी समझ लो ताकि फिजिक्स में थोड़ा और डिटेल में समझ में आए और इजीली समझ में आए। For a process to be reversible, there must not be any dissipative forces and the system should be in a quasi-static state. Simple language में यहाँ पर reversible में हर स्टेप में इक्विलिब्रियम अचीव होना चाहिए। एक स्टेप उतरा, इक्विलिब्रियम आया, दूसरा स्टेप उतरा, इक्विलिब्रियम आया। तो ऐसे जब छोटे छोटे स्टेप्स में हर स्टेप में इक्विलिब्रियम अटेन होता है, तो उस सिस्टम को क्वाजी स्टैटिक स्टेट बोला जाता है, ठीक है। और डिसिपेटिव फोर्सेस क्या होते हैं? बेसिकली जो हीट निकलती है, दैट इज डिसिपेशन, आर फोर्सेस ऑफ सच नेचर दैट एनर्जी इज लॉस्ट फ्रॉम अ सिस्टम व्हेन द मोशन टेक्स प्लेस। फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट होगा फ्रिक्शन रिलेटेड, ठीक है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस हमेशा क्वाजी स्टैटिक स्टेट में होता है एंड डिसिपेटिव फोर्सेस जीरो होने चाहिए। ये दो कंडीशन याद रखो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। अच्छा, बाय द वे, फिजिक्स में जब थर्मोडायनामिक्स पढ़ोगे तो वहां पर जैसे मैंने बोला मैकेनिकल इक्विलिब्रियम काफी इंपॉर्टेंट होगा, मतलब जो नेट फोर्स है एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट शुड बी इक्वल टू जीरो, तब जाके वो फिजिकल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। फीचर्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, रिवर्सिबल में ड्राइविंग एंड अपोजिंग आर ओनली इनफाइनाइटेसिमली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, यही तो डेफिनेशन था। प्रोसेस कैन बी रिवर्स्ड एट एनी पॉइंट बाय मेकिंग छोटा सा चेंजेस इन कंडीशन। द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, 5000 स्टेप्स जो एग्जांपल दिया मैंने, ठीक है। एंड एट द एंड ऑफ एवरी स्टेप, हर स्टेप पे सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। एंड इस पर्टिकुलर प्रोसेस में मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन किया जा सकता है। एंड रिवर्सिबल प्रोसेसेस ऐसे प्रोसेसेस होते हैं which takes place so slowly that the system will always be in a temperature pressure equilibrium with the surrounding। मतलब मैकेनिकल के साथ
थर्मल और केमिकल इक्विलिब्रियम में भी होगा अगर कोई केमिकल रिएक्शन कंसिडर किया तो, वरना ये थर्मल इक्विलिब्रियम तो है ही। आता है समझ में? Yes, आर ऑल द पॉइंट्स क्लियर? फाइनली रिवर्सिबल का छोटा सा डेफिनेशन है, अ प्रोसेस व्हिच इज नॉट रिवर्सिबल इज कॉल्ड इरिवर्सिबल, या बाय डेफिनेशन द डिफरेंस बिटवीन द ड्राइविंग एंड द अपोजिंग फोर्स शुड बी large. large, such that a small increase in the external or the opposing force is not going to reverse Reverse the reaction. the process or reaction. सारे नेचुरल प्रोसेसेस जो होते हैं नेचर में वो इरिवर्सिबल होते हैं एंड दे आर स्पॉन्टेनियस आल्सो। स्पॉन्टेनियस मतलब दोज व्हिच कैन टेक प्लेस ऑन इट्स ओन। फॉर एग्जांपल, वाटर फ्लोइंग इन अ डैम will always flow from higher potential energy to lower, कभी भी उल्टा फ्लो नहीं होता है। ऑब्वियसली मोटर लगाओगे तो उल्टा कर सकते हो, लेकिन मैं नेचुरली बात कर रहा हूं। तो नेचुरली कोई भी प्रोसेस खुद ब खुद होता है वो इरिवर्सिबल ही होगा, ठीक है। अ करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू अ कोल्डर बॉडी, रिवर्स कभी भी नहीं होता। तो सारे नेचुरल प्रोसेसेस इरिवर्सिबल है और स्पॉन्टेनियस होते हैं, टेक्स प्लेस ऑन इट्स ओन। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Perfect. So I will stop here today. We have completed with the introduction to the basic parameters used in thermodynamics: system, surrounding, boundary, state function, path function, extensive property, intensive property, and then we came to the equilibrium state and then proceeded to the processes. Processes में हमने isothermal, adiabatic, isochloric, isobaric and reversible, irreversible को डिस्कस किया है, ठीक है। इनके अलावा एक साइक्लिक प्रोसेस भी होता है, नाम से ही समझ में आता है। साइक्लिक प्रोसेस ऐसा है जो जिस पॉइंट से शुरू किया खत्म भी उसी पॉइंट पे होगा, मतलब उसका इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम ही होगा। ऐसे प्रोसेसेस में द चेंजेस इन द थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स आर इक्वल टू जीरो, मतलब डेल्टा टी जीरो होगा, डेल्टा यू जीरो होगा, डेल्टा एच जीरो होगा। डू यू अग्री? क्योंकि जो स्टार्ट है वही अंत है, राइट? Yes. दैट इज अ साइक्लिक प्रोसेस जिसका डेफिनेशन दिया है। और उसके अलावा एक नोट दिया है कार्नोट साइकिल के ऊपर। कार्नोट साइकिल केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट नहीं है, फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैं आगे आपको दूंगा व्हेन वी टॉक अबाउट द गिब्स एनर्जी कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो फिजिकल केमिस्ट्री में वॉट एवर पार्ट आई एम डिस्कसिंग इन अ सेशन, उसके रिलेटेड जो synopsis है that you have to refer and start solving the MCQs from the entrance notes. आप साइमल्टेनियसली करोगे तो क्या होगा, आपका रेगुलर रिवीजन भी होगा, MCQ सॉल्विंग भी होगा, एंड सेकेंड सेशन में उसके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। एंड दिस विल बी वेरी एफिशिएंट वे, बिकॉज जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे जो फॉर्मूलाज है वो हमें आगे लगते जाएंगे, जो कॉन्सेप्ट्स है वो आगे लगते जाएंगे। वैसे तो मैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में भी ये बड़बड़ करता था, जिन्होंने सीरियसली लिया वेल एंड गुड, दे आर रियली हैप्पी। जो नहीं लेते हैं चलो अभी से शुरू कर लो, देर आए दुरुस्त आए। फाइन, सो MCQs up to the processes needs to be completed. I'll just put in the group also कौन से section तक complete करना है, but make sure you go through the synopsis, you highlight the important points and understand the concepts related to them. Fine. Yes, sir. Yes.